اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، چیئرمین تحریک انسداد تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات اسلام آباد، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی N47 اسلام آباد ایم یعقوب علوی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں سمیت اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ویڈیو کی تاخیر پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ کچھ نجی معاملات، مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب نہ ہو سکا، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پرانے دکھوں کے ساتھ۔ اپنے پرانے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے تذکرہ کروں گا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی، جو لا قانونیت کا گڑھ ہے، تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے اور قوانین کا اطلاق نہ ہونے کے برابر ہے۔ پتہ نہیں انتظامیہ کی توجہ اتنے بڑے مسئلے کی جانب مرکوز کیوں نہیں ہوتے۔ منڈی کے چیئرمین جناب ساجد عباسی صاحب پچھلے دنوں عارضۂ قلب کی وجہ سے ہسپتال منتقل ہوئے، لیکن الحمدللہ ان کی صحت ابھی بہتر ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد صحت کاملہ عطا کرے، اور پھر وہ منڈی کے انتظام و انصرام کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر سکیں اور کچھ معاملات کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک شخص نہیں ہے تو کیا باقی پورا ڈھانچہ، پوری انتظامیہ کو کیا ہو گیا؟ منڈی کے سیکرٹری محمد ثاقب صاحب، جو غالباً مجسٹریٹ کے اختیارات کے بھی حامل ہیں، ان کی کارکردگی کا اگر جائزہ لیں تو ان کی کارکردگی بھی مافیا کی سہولت کاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے کیریئر کے آغاز سے کہاں تک پہنچ گیا۔ منڈی کے سیکرٹری کے ساتھ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی مل گئے، مگر وہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے ساتھ مافیا کی سہولت کاری پر مامور ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حکام کو سوچنے کی ضرورت ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اعلیٰ حکام تک رپورٹ ہی نہیں جاتی۔ اگر اعلیٰ حکام تک رپورٹ جاتی ہے تو وہ سب اچھے کی رپورٹ جاتی ہے، جی سیکرٹری صاحب کی کیا بات۔ یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے رپورٹ بنانے والوں کی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ محمد ثاقب صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ سیکرٹری ہے، ان کی میں نے ان کو کئی مرتبہ وائلیشنز کی طرف متوجہ کیا، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ الوی صاحب یہ میں ٹھیک کرواتا ہوں، لیکن صفر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر مامور نہیں، بلکہ مافیا کی سہولت کاری پر مامور ہے، اور اپنا خوب کام کر رہا ہے۔ خیر، یہ ثاقب صاحب نے ہمیشہ کے لیے تو سیکرٹری نہیں رہنا۔ یہ یہاں پر کئی سیکرٹری آئے اور چلے گئے، اس نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن چلے جانے کے بعد اس کو یہ محسوس ضرور ہوگا کہ یہ منڈی کے اندر بددیانتی کی ایک بہت بڑی مثال قائم کر کے گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم جناب چیف کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جناب محمد علی رنداوا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں قوانین پر اطلاق کروانے کی وجہ سے۔
नाज़रीन करام, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कह जाता हूँ, लाशऊरी तौर पर कह जाता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जंगल का कानून राइज है, और इसकी 101 मिसालें मैं 24 घंटे मुहैया कर सकता हूँ। कोई भी साहिब इक़्तिदार, कोई भी आला सरकार इसका जायज़ा लेना चाहे, इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहे, इसका रिकॉर्ड लेना चाहे, इसका विजिट करना चाहे, तो ये खाकसार बगैर किसी मुआवजे के 24 घंटे के लिए तैयार है। मुझे हुक्म तो करके देखें, मगर मुझे हुक्म करने से पहले आप उन तजावुज़ात का जायज़ा ले लें जो सरासर गैर कानूनी और अवामी हकूक की पामाली में एक बदतरीन भयानक किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन करम, पार्किंग गाड़ियों के लिए होती है, पार्किंग बिजनेस के लिए नहीं होती। पार्क सैर व तफरी के लिए होते हैं, पार्क अवाम की सहूलत कारी के लिए होते हैं, ज़हनी आसूदगी के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 15 बाई 25 की अलॉटेड स्पेस के ऊपर वो मंजूर नज़र 8 कनाल अराजी अपनी लपेट में ले रहे और फिर बदमाशी के साथ एशियाए खुर्दनोश के डबल से डबल रेट चार्ज करे। कोई पूछने वाला नहीं। ये जंगल का कानून क्या नहीं है? ये छोटी सी मिसाल है, छोटी सी मिसाल। आप इस्लामाबाद के किसी सेक्टर का जायजा लें, कोई छोटा सेक्टर का इंतखाब करें या किसी बड़े सेक्टर का इंतखाब करें। आप एक प्लाजे की राहदारी का जायजा लें, क्या आपको राहदारी खुली नजर आती है? क्या SOPs में राहदारी आवाम के लिए खाली रखने का हुक्मनामा SOPs के अंदर मौजूद नहीं है? तो फिर ये लोग किस हैसियत में राहदारियाँ बंद करते हैं? और राहदारियाँ तो दूर की बात, इन लोगों ने तो ये माफिया, ये BCS के बदनवान जो अफसरान हैं, बदनवान इंस्पेक्टर्स हैं, उनके तावन से राहदारियों के बाहर गेट लगाकर दुकानें बनाकर बड़े बड़े किरायों पर दे दिए। विजिट करना है, चेयरमैन साहब ने विजिट करना है, BCS के DC ने विजिट करना है, एनवायरनमेंट के किसी बड़े अफसर ने विजिट करना है, एनक्रोचमेंट डायरेक्टर ने विजिट करना है। ये एक खातून आई थी यहाँ पर, डॉक्टर अनम फातिमा, इसकी बड़ी मिसालें लोग कैम कर रहे थे। मैंने भी उसके लिए प्रोग्राम किया कि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसका काम भी ठोस होकर रह गया। उसके दाएं बाएं दफ्तर के इर्द गिर्द इतनी वायलेशन है कि गिनवाए तो एक पूरी लंबी लिस्ट बनती है। मैं पूछता हूँ एनकरोचमेंट वालों से, मैं पूछता हूँ BCS वालों से, मैं पूछता हूँ तमाम जिम्मेदारों से, जब एक तजावुज़ात को आप ख़त्म करते हैं तो वो माफिया शिद्दत के साथ उसी वक्त उससे बड़ी बिल्डिंग क्यों खड़ी कर लेता है? बड़ा वो वायलेशन करके जगह को क्यों कवर कर लेता है? और इंतजामिया का एक्शन बस एक ही दफ़ा मिसमार करने के ख़त्म होता है। उसके अलावा कोई कानून नहीं। अगर उसने दोबारा बनाया तो उसको दोबारा मिसमार कर दे, उसके लिए कोई शेक लगाए, उसके लिए कोई कानून हो, उसके लिए कोई सज़ा जजा हो, तो उसको उसके कायदे कानून के अंदर लेकर है। लेकिन ऐसा नहीं आपको नजर आएगा, ऐसा नहीं नजर आएगा जनाब वाला। ये इंतहाई हम सब के लिए शर्म का मकाम है, बल्कि डूब मरने का मकाम। देखिए, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं है क्या? ये पाकिस्तान के तमाम शहरों से इसको बर्तरी हासिल नहीं है क्या? यहाँ पर वजीर आजम का मस्कन नहीं है, वजीर आजम का सेक्रेटेरिएट नहीं है, यहाँ पर सदर साहब का, सदर पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट नहीं है। वहाँ पर पूरे मुल्क के बड़े इदारों के दफातर, मिनिस्ट्रियाँ मौजूद नहीं है, और वायलेशन, तजावुज़ात, ये अशियाए खुर्दनोश के ऊपर मनमानी कीमतें और नाकिस अशियाए खुर्दनोश धड़ल्ले के साथ माफिया बेचने पे लगा हुआ है। माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है, मगर हमारी इंतजामिया सत्तू पीकर सोई हुई है। किसी भी जिम्मेदार को 1% भी एहसास नहीं। ये तो नाज़रीन करम वो छोटे छोटे मामूली माइनर ऑपरेशन है जो एक डॉक्टर, आम BBS डॉक्टर अपने छोटे से क्लिनिक पे करके मरीज को फायदा पहुंचाता है। अभी बड़े ऑपरेशन की तरफ तो मैंने आपकी तवज्जो नहीं करवाई। जो अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं, वो जो ये बदनवान माफिया की वजह से
बादलमान सरकारी माफिया की वजह से निजी माफिया ने इस्लामाबाद का नक्शा बिगाड़ के, हुलिया बिगाड़ के रख दिया, मुंह पे कालक मल दिए। नाज़रीन कराम, चीफ कमिश्नर साहब, वज़ीर दाखिला मौसूफ जनाब मोहसिन नकवी साहब और दीगर तमाम आला हुकाम, मैं आपको बाबर करवाता चलूँ कि किसी भी रियासत का दारुल खिलाफा, जिसको दारुल हुकूमत कहते हैं, वो उस पूरी रियासत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी रियासत का आईनादार होता है, एक पहचान होता है। दुनिया भर के लोग वफाकी दारुल हुकूमतों का रुख करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि इस रियासत के अंदर कवानीन का इतलाक क्या है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप खुद अपनी आंखों से जायज़ा लें, अपनी टीमों को भेजें, अपने खुफिया इदारों की वसातत से इसकी रिपोर्टें बनवाएं और फिर फैसला खुद करें। नाज़रीन करम, ये हमारे प्रोग्राम का दौरानिया बहुत मुख्तसर सा होता है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं एक तवील नशिस्त में आपके सामने सारी बीमारियाँ जो डायग्नोज्ड है और पता है कि ये बीमारी हमारी रियासत को, हमारे दारुल खिलाफा को लगी हुई है, इसका इलाज करना है, वो आपके सामने रखूँ, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करें। मैं चेयरमैन तहरीक इंसदाद तजावुज़ात और तामीरात के हवाले से ये पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अपनी अवामी ताकत के बलबूते पर बात कर रहा हूँ, अपनी सियासी, समाजी और कारोबारी तंजीमों के हवाले से बात कर रहा हूँ। हम तमाम लोग इश्तराक के साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कवानीन को 100% इतलाक करवाएंगे। 100% किसी माफिया को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो अवामी सहूलतों की पामाली करे, अवामी सहूलतों को गज़ब करे और यहाँ पर दंदनाता फिरे। ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान एम याकूब अलवी को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।